Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is an address to the devotees performing on Akut Giri Govardhan Puja Festival by His Holiness Jaya Pataka Swami Maharaj on November 24th, 2020 in Sridham, Mayapur, India. Makakaroti Vachalam Mangalang Gayate Garam Yatsithata Vahanvande Sri Guru Nidadadidam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isham Harihi Om Tat Sat. Suswagatam. Suswagatam. I'm glad you come to Govardhan. मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप सब आज गोवर्धन में आए हैं. Govardhan is a very holy place. गोवर्धन एक बहुत ही धार्मिक स्थल है. Govardhan is considered as non-different from Krishna. गोवर्धन को माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है. Lord Chaitanya came as he was showing the activities of devotees. जब चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया वो आए थे और वो एक भक्त के रूप में आए थे. He refused to step on the Govardhan. और चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया था कि वो गोवर्धन के ऊपर एक कदम भी नहीं रखेंगे. गोवर्धन के ऊपर At that time, Nadi Didi was on the Govardhan as a Gopal. और उस समय गोवर्धन के ऊपर भगवान कृष्ण का एक विग्रह था जिसका नाम था गोपाल. And later he was transferred to Rajasthan and Nardwara. और उसके बाद उस विग्रह को राजस्थान में नाथ द्वारा में ले जाया गया. And he's known as Srinath Ji. और श्रीनाथ जी के नाम से वो वहाँ पर जाने जाते हैं. And at that time, Lord Chaitanya, he was on Govardhan Hill. और उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन पर्वत पर ही थे. And Lord Chaitanya wanted to see him, but he would not step on Govardhan. तो वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक भी कदम गोवर्धन पर नहीं रखना चाहते थे. Then there was a report that the Mughals are going to attack, so they moved the Gopal Didi to a nearby village. तो उन्हें पता लगा कि कैसे मुगल के राजा वहाँ पर आक्रमण करने वाले थे, तो इसीलिए उन्होंने भगवान जो गोपाल का जो विग्रह था वो पास ही किसी गांव में छुपा दिया. And there, Lord Chaitanya had the darshan of Gopal. और वहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु को गोपाल का दर्शन मिला. He circumambulated the Govardhan Hill. उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की. He visited the Haridev temple. और उन्होंने हरिदेव का मंदिर के दर्शन किए. He bathed the Manas Sarovar. और वो मानस सरोवर में उन्होंने स्नान किया. He went to the Anayur part of the Govardhan. Anayur. वो गोवर्धन के जो अनयोर जो जगह थी वहाँ पर भी गए और वहाँ के दर्शन किए. There was Kunda there, Malakunda, Govindakunda. He went, I forget the name of the Kunda, he went to the Kunda. और वहाँ पर जो एक कुंड था वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए. And then he walked around the whole Govardhan. और उन्होंने गोवर्धन के निकट ही वहाँ पर परिक्रमा की. There was one village called Anakut.
और वहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था अन्नकूट, He went there. और वहाँ पर वो गए। So he was very active in the Govardhan puja. तो वो बहुत चैतन्य महाप्रभु बहुत ही सक्रिय थे गोवर्धन पूजा के लिए। So like that, he found the Radha Kund and the Shyam Kund. और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड को खोजा। And at that time, it was Adigram. और उस गांव का नाम था आदिग्राम। He made the Ramakunda. और वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म कुंड में स्नान किया। So Lord Chaitanya saw the Gopalji, that village was known as Kanchali. तो चैतन्य महाप्रभु ने जहाँ पर गोपाल विग्रह, जिस गांव में गोपाल विग्रह का दर्शन किया था, उस गांव का नाम था गांथुली। And he went to the various bones of Vrindavan, और bones. चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में जो भी वन थे उनके भ्रमण किया वहाँ पर। So he also, of course, we know how with one hand on the left hand, one finger, he lifted the whole Govardhan hill. और हम जानते हैं कि कैसे भगवान ने अपनी कर उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया था। And all the Vrajarajas went under the hill for protection. और सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे थे अपना बचाव करने के लिए। After 1 week, Indra stopped the rain. और एक सप्ताह के बाद एक सप्ताह इंद्रदेव ने बारिश रोक दी थी। And Lord Krishna told all the Vrajavasis to out from under the Govardhan hill. तो जब इंद्र ने बहुत ज़्यादा बारिश की तो भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को बोला था कि आप गोवर्धन जो पर्वत है उसके नीचे आ जाइए। Then he replaced Govardhan hill. और फिर भगवान ने गोवर्धन जो पर्वत है उसको उठाकर सबका संरक्षण किया। All the colored men, they approached Nanda Maharaj. तो सारे जो ग्वालवाल थे वो नंद महाराज के पास गए। Who is your son? कि आपका जो बेटा है, आपका पुत्र है, ये He है कौन? just lifted the Govardhan hill for 1 week. और आपके बेटे ने जो गोवर्धन जो पर्वत है इसको 1 हफ्ते के लिए उठा के रखा हुआ है। Tell us, who is your son? तो बताइए कि आपका जो पुत्र है वो है कौन असली में। Don't tell us he's an ordinary person. तो हमें ये मत बताइएगा कि वो एक साधारण एक बच्चा है, एक शिशु है। Then Nanda Maharaj told them Gauravani came when he was born. तो नंद महाराज ने उन सभी ग्वाल बालों को बताया कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो गर्ग मुनि वहां पर आए थे। So he said that this boy will have the power of Narayana. तो गर्ग मुनि ने ये बताया था कि इस शिशु, इस बालक में भगवान नारायण की शक्ति रहेंगी। And he will be very good for your cohort people. और उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे ये जो शिशु है, ये जो बालक है, ये ग्वाल बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। And you should take care of that carefully. और आपको इस बालक की बहुत ध्यानपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी It's चाहिए। very good for you. ये एक बहुत ही बढ़िया एक बालक होगा आप सभी के लिए। So telling that to the god men, they were satisfied. सो जब गर्ग मुनि ने जब नंद महाराज ने ये ग्वाल वालों को ये विवरण दिया तो वो बहुत ही संतुष्ट हुए थे। But
Why did he have the power of Narayana? लेकिन क्यों इस बालक के पास भगवान नारायण की शक्तियां थी, That he didn't say. ये उन्होंने नहीं बताया. That also Garamuni didn't tell him. गर्ग मुनि ने ये नंद महाराज को भी नहीं बताया था. He is the source of Narayana. वो नारायण के मूल हैं, ये जो बालक हैं, Naturally, he has all the power of और Narayana. स्वाभाविक रूप से इनके पास नारायण की सभी शक्तियां हैं. Lord Chaitanya, 500 years ago, came to Vrindavan. तो 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले भगवान महाप्रभु वृंदावन आए थे And he saw the holy places. और उन्होंने ये सारे धार्मिक स्थलों का दर्शन किया. At that time, Radhakunda and Shyamkunda are lupta. और उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड लुप्त हो गए थे. He found them, and like that, he prepared the Radhakunda Shyamkunda. तो चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड को खोजा था और फिर उसकी अच्छी तरह स्थापना की थी. He told the 6 Goswamis to stay in Vrindavan and locate all the holy places. तो चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को कहा था कि आप वृंदावन में वास कीजिए और सारे धार्मिक स्थलों को खोजिए. I'm very happy that you're coming to Govardhan every year. तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप हर साल गोवर्धन आते हैं. These places, if you even hear about the past times, or to think of visiting the place, that purifies you. तो गोवर्धन धाम में आना ही क्या, अगर आप इस धाम के लीलाएं अगर आप सुनते हैं सिर्फ, तो आपका आप जो Rajavas is told Lord Chaitanya, तो गोवर्धन धाम में आकर आप शुद्ध हो जाते हैं. ब्रजवासी जो थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बताया था you are not an ordinary person. कि आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं. We see you as none different from Nanda Maharaj's son. तो हम देखते हैं कि कैसे आप नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनसे अभिन्न हैं. And just I remember your name. Ladies, children, old men, outcasts, everyone can become purified. और सिर्फ आपका नाम मात्र जपने से ही सभी व्यक्ति शुद्ध हो सकते हैं. And they can deliver the whole 3 worlds to spiritual master. और अपने गुरु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो गुरु बनकर ये जो 3 जो लोक हैं इन सब का उद्धार कर सकते हैं. And it's just only one thing. और भी काफ़ी चीज़ें कही गई थी. So like this, Chaitanya Mahaprabhu was giving his special mercy to the Vrajavasis. तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपनी विशेष कृपा ब्रजवासियों को दे रहे थे. So now he sees that the Rajasthan desert has come closer to Vrindavan. अब हम देख रहे हैं कि कैसा राजस्थान का जो डेजर्ट है वो कैसे वृंदावन के पास है. Previously Vrindavan was very green, lots of trees. तो क्षमा कीजिएगा गुरुमा जी, अभी बता रहे हैं कि पहले, अभी तो ज़्यादा पेड़ और ये नहीं है, लेकिन पहले वृंदावन में बहुत सारे पेड़ होते थे, वो पूरा हरा भरा रहता था. And there Krishna has childhood and youthful pastimes. और वहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल की लीलाएं की थी. So you're all blessed. तो आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, आपको आशीर्वाद मिला है. And this holy place of Vrindavan. आप इस वृंदावन के धार्मिक स्थल पर हैं. Actually, Lord is the Param Satya. तो असल में भगवान ही परम सत्य हैं. He is the absolute truth.
भगवान ही परम सत्य पूर्ण सत्य हैं। The head and his body and his holy Dham and not do it. तो भगवान के नाम में, भगवान के शरीर में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। His holy name, his pastimes, भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, his qualities, भगवान के गुण, all one in the absolute. ये सब कुछ एक अभिन्न है, इनमें कोई अंतर नहीं है। So while you're attending the holy place of Krishna's pastimes, you can have contact with Krishna. तो जब आप भगवान के जो धार्मिक स्थल हैं, तो अगर आप वहाँ पर भ्रमण करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो आप सीधे भगवान कृष्ण से एक संपर्क बना सकते हैं। So these places he visited, Lord Chaitanya visited, तो इन धार्मिक स्थलों पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, and that's why this place is so sacred. तो इसीलिए ये जो जगह हैं ये इतनी धार्मिक हैं। And you can get the celestial mercy by visiting this place. और आपको इन धाम में आकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। And normally in the human form of life, we don't think that we're not the body. आम तौर पे ये जो मनुष्य शरीर जब हमें प्राप्त होता है, तो हम आम तौर पे ये नहीं सोचते कि हम ये शरीर नहीं हैं। We think of the body and we act like the body. तो हम यही सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं और उसी के हिसाब से हम अपने कार्य करते हैं। This way, we waste our valuable human form of life. और इसी प्रकार हम ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, हम इसे व्यर्थ कर देते हैं। The real purpose of human life is to serve Lord Krishna. तो असल जो हमारा उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो ये है कि हम कैसे भगवान कृष्ण की सेवा कर पाएं। And that is the actual purpose of life. ये जीवन का असली उद्देश्य है। By serving Krishna, we get unlimited spiritual happiness. और भगवान कृष्ण की सेवा करके हमें असीमित आनंद की प्राप्ति होती है। So we want everybody to be happy. तो हम चाहते हैं कि आप सभी प्रसन्न रहिए। And the only way is to be engaged in pure bhakti. और सिर्फ एक ही तरीका इसका है कि अगर आप शुद्ध भक्ति में संलग्न रहें। So we hope that you all achieve pure bhakti. तो हम आशा करते हैं कि अब आप सभी शुद्ध भक्ति प्राप्त करें। Husband and wife can both achieve pure bhakti. कैसे स्वामी और स्त्री एक साथ शुद्ध भक्ति प्राप्त करें। And Shankaracharya, other Mayavadi say one should be a sannyasi to they can achieve moksha. तो शंकराचार्य और भी मायावादी लोगों ने ये बताया था कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सन्यासी होने की आवश्यकता है। But according to the Bhakti Yoga, whether you're Grihastha or you're Vairagi, everyone can achieve perfection by simply carrying out the orders of the spiritual master and chanting Hare Krishna. लेकिन भक्ति योग के माध्यम से अगर आप भगवान कृष्ण की आदेशों का पालन करेंगे, गुरु के माध्यम से गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, तो आप ये भक्ति योग कर सकते हैं। So, I'd like to give you some chance if you want to ask any question. तो अगर किसी का कोई एक प्रश्न है तो मैं वो ले सकता हूँ।
अमृतेश कृष्ण प्रभु, किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न गुरु महाराज ले सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में स्थिर कैसे राजा? पद्माकर मिश्र प्रभु फ्रॉम गोरखपुर इज आस्किंग कृष्ण भावनामृत में कैसे स्थिर रहा जाए, हाउ टू बिकम फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्टेबल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। अच्छा, गुरु हिंदी में बोल रहे हैं, अच्छा प्रश्न है। मैं थोड़ा हिंदी जानता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी बोलूँगा। मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता हूँ लेकिन मैं अंग्रेजी बोलूँगा और इसके साथ अनुवाद होगा। So, there are 8 steps in Bhakti Yoga. तो भक्ति योग के 8 स्तर हैं। First is Shraddha, श्रद्धा, then Satsanga, साधु संगा, then Vajana Kriya, भजन क्रिया, then Anarthanavritti, अनर्थ निवृत्ति, Nishtha, निष्ठा, Ruchi, रुचि, Ashakti, आसक्ति, Bhava, भाव and then Prema. और उसके बाद प्रेम। So, first one in the Vajana Kriya, usually on that stage, one takes initiation. तो भजन क्रिया के स्तर पे आमतौर पे व्यक्ति दीक्षा लेता है। And then under the guidance of Guru and his assistants, they get rid of their anarthas. और गुरु के और वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में वो That's called, आगे बढ़ते हैं, that's called anartha nivritti. जिसमें उस स्तर को कहा जाता है अनर्थ निवृत्ति। And then one is nishtha or steady in devotional service. और फिर उसके बाद होता है निष्ठा, या जिस स्तर पे व्यक्ति स्टेबल, जो प्रभु जी प्रश्न पूछ रहे थे वो होता है। This is a gradual process, and if he takes initiation, he goes out to anartha nivritti, and he can become nishtha or fixed. तो ये एक क्रमशः प्रक्रिया है। तो अगर कोई दीक्षा लेता है तो फिर उसके अगला स्तर जो होता है, धीरे धीरे भक्ति करते समय वो एक निष्ठा के स्तर पर पहुंच सकता है। ओके, अमृतेश कृष्ण प्रभु। यस गुरु महाराज। तो गुरु महाराज सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सारी तैयारियां कीजिए। Guru Maharaj, you are so grateful. Your presence is like a dream come true for us. Every year we come with army, air force and navy devotees, and also Ambala, Gorakhpur and some of Mathura devotees, and also from Jagannath Puri. And every year we offer, but this year has been very special because you could come and bless us with your virtual presence, and you yourself will offer this insignificant offering to Giri Govardhan. We are so grateful to you, Guru Maharaj. So I was in the ROTC, and then in the NROTC in the USA. तो मैं अमेरिका में RODC में था, उसके बाद मैं NRODC में गया, Army and Navy. आर्मी और नेवी में। Then I asked Prabhupada, what should I do? तो फिर मैंने प्रभुपाद से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। He said, better you join Krishna's army. प्रभुपाद ने कहा अच्छा होगा कि आप भगवान कृष्ण की सेना में युक्त होइए। And I'm Indian. I'm also army man. तो मैं भी एक आर्मी का व्यक्ति हूँ, फौज में हूँ। लीडर गुरु महाराज। गुरु महाराज इज द लीडर। You are our commander in chief, Guru Maharaj. कमांडर इन चीफ।
ओके अमृतेश कृष्ण प्रभु. How long it take to get the offering ready? ये सब व्यवस्था पूरा करने में कितना समय लगेगा अमृतेश प्रभु? Around 2:15 will be ready, Guru Maharaj. People are 2:15. cooking since yesterday. Some devotees have not slept the whole night also. They're so enthusiastic to cook. And this program is really very inspiring for all of them. By your mercy, Guru Maharaj, this has become very much attractive program for all of them. All right. ओके प्रभु जी. ठीक है. Guru Maharaj, we are extremely sorry that we are a little chaotic to receive you when you came. And please forgive for our unorganized, having an unorganized reception. And we are getting ready for 2:15 darshan. Guru ओके Maharaj, प्रभु जी. please. Thank you. Okay, so I'll come back at 2:15. So I'll come back at 2:15. Yes, Guru Maharaj. हरि 2:15 बोल. will be ready. 2:15 जय. will be ready. वृंदावन धाम की जय. जय. झूलने जय पताका स्वामी गुरु महाराज की हरि जय. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.